जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। हालेलुया। से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के कलाम वास्ते, आज के वचन वास्ते। सो इत्थे ਅਸੀਂ अगर गौर करते हैं तो परमेश्वर का दास साडा ध्यान किस चीज़ वाल लियाउण की कोशिश करता है। एक प्रैक्टिकल जीवन जो किवें दा एक मसीही एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल जीवन किद्दां दा साडा होना चाहिए वा, परमेश्वर का दास साडा उस पासे नूं ध्यान दिवाउण की कोशिश कर रहा है। जिद्दां ਅਸੀਂ अगर पहली आयत उत्ते फोकस करते हैं तो की कहती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। सो इत्थे ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਖੋਜ ਉੱਤੇ। ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੰਚੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਰਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हुण जदों असीं परमेश्वर द्वारा एक नवीं कह लो कि सृष्टि कर दिते गए हैं, असीं हुण परमेश्वर दे विच एक न्यू क्रिएशन आ, हुण असीं बदल दिते गए हैं प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी के सदका जिहड़ी उस क्रूस दे उत्ते दित्ती गई, वो कतरे कतरे लहू के सदका असीं हुण बदल दिते गए हैं। सो साडा हुण जिहड़ा जीवन आ वो परमेश्वर दे विच मसीह यीशु दे नाल परमेश्वर दे विच की आ छिपिया होया। हालेलुया। सो सानू किस चीज़ की अज का जो मेरा विषय वो इसी वर्ष के उत्ते है कि हुण असीं जदों मसीह के द्वारा एक नवे जीवन के विच एंटर कर चुके हैं, हुण जदों असीं खुदावंद दे उस फजल के द्वारा एक नवे जीवन के विच एंटर कर चुके हैं, हुण जदों असीं प्रभु यीशु मसीह के नाल परमेश्वर की छत्र छाया के हेठां आपां कह सकते हैं, उहदे हत्थ हेठां वां उहदे विच छुपे हुए हैं। सो अपने आप नूं की करिए, हर वेले छुपाए रखिए उहदे विच, उहदी मर्जी तो बाहर असीं ना निकलीए। असीं छोटे हुंदे हना सब ने वो एक गेम एक खेड खेडी होएगी जिहदे विच एक बंदा लुक जाता तो दूसरा बंदा उन्होंने लभण की कोशिश करता है ना। सो उस तरीके नाल कि वो जो बच्चा जिहड़ा वा जद तक एक सियाणा ते एक चलाक बच्चा किहो जी जगह नूं लभ ला कि जिथे मैं जाके लुक जावां तो उत्थे मैनूं कोई लभ ना सके, पर उही बच्चा जे चलाकी मार के देखने की कोशिश करता बाहर निकल के भी कोई वो बंदा किते बाकी फड़े गए है कि नहीं, जां मैं बचिया होया वां जां वो बंदा किथे जिहड़ा फड़ रहा तो हो सकता कि वो फड़िया जाए। सो इदां ही साडे आत्मिक जीवन दे विच भी हुंदा कि जद तक असीं प्रभु का वचन सानूं की दसदा कबूतर वांगू भोले ते सप वांगू चलाक बनो, तो साडी जो बुद्धिमानी साडी चलाकी इसे चीज़ दे विच आ कि असीं परमेश्वर हमेशा अपनी ढाल लैके चलीए। जिद्दां असीं इत्थे पढ़दे हां कि असीं हुण यीशु मसीह दे नाल परमेश्वर दे विच की हो गए हैं, छिपे हुए हैं, छिपाए गए हैं, है ना। सो हुण असीं जदों छिपे हुए हैं तो आपदे आप नूं उस पवित्रताई दे विच बरकरार रखिए, छिपे रहिए। जिवें असीं अगर पढ़दे पहला पतरस दी 5:8 दे विच असीं जावांगे नहीं। सो प्रभु का वचन उत्थे सानूं की दसदा, उत्थे दसदा कि सचेत रहो जागदे रहो क्योंकि तुहाडा विरोधी शैतान जिहड़ा भुखे शेर वांगू दहाड़दा कि किनूं वो फड़े ते चीर फाड़ देवे, है ना। सो वो किस खोज दे विच, खोज इत्थे फिर आने भी खोज इस फोकस दे विच कि किहड़े बिलीवर नूं किहड़े परमेश्वर के जन नूं की करे चीर फाड़ देवे, जिथे उन्हें मौका मिले वो चीर फाड़ देवे। और इत्थे प्रभु का वचन सानूं फोकस करन की कह रहा सचेत रहो जागदे रहो, आत्मिक तौर पर जागदे रहो कि कदे भी शैतान नूं वो मौका ना दवो, क्योंकि वो आपके काम नूं लैके बड़ा डेडिकेटेड है। असीं कई बार ढिले पै जाने लेकिन वो खोज दे विच भी किहड़ा ढिला पैंदा किहड़ा सौंदा तो हुण की कर लवे उस टैंपटेशन दे विच उस पाप दे विच की कर लवे सुट देवे, परमेश्वर तो किस तरीके नाल अलग कर देवे। सो सानूं की लोड़ है कि असीं जदों हुण परमेश्वर दे विच एक नवें जीवन दे विच परमेश्वर द्वारा असीं बचाए गए हैं तो असीं उस कह लो कि एक छुपण वाली जगह दे विच छुप गए हैं जिथे असीं सेफ हाँ, जां कह लो कि अपने आप एक अलमारी दे विच असीं बंद कर लिया वा कि जिथे असीं हुण सेफ हाँ, जिथे दूसरा विरोधी आके सानूं छू नहीं सकता, सानूं टच नहीं कर सकता, उत्थे की करिए असीं आपदे आप नूं बना के रखिए परमेश्वर की मर्जी दे विच रहिंदे होए। जे असीं कोशिश करांगे बाहरी दुनिया दे विच झांकण दी ते हो सकदा वा कि वो की करे सानूं खिच लवे। हालेलुया। हालेलुया। असीं जे पढ़दे हां गलातियां दी पत्री 2:20 ते प्रभु दा कलाम उत्थे सानूं की दसदा, उत्थे प्रभु दा अगर कोई नोट डाउन करना चाहुंदा कर सकदा, पर आपां इदां ही हुण ओवरव्यू ते जावांगे कि उत्थे प्रभु दा कलाम सानूं इह दसदा संत पौलुस की कहंदा वा कि मैं मसीह दे नाल की उस सलीब दे उत्ते क्रूस दे उत्ते मर गया, हुण मैं नहीं मसीह मेरे विच जिंदा। सो उही चीज़ जिहड़ी आ प्रभु दा दास सानूं इस जगह ते की करदा मोटिवेट कर रहा, इनकरेज कर रहा, सानूं सिखा रहा वा कि असीं हुण जदों मसीह दे विच मर गए हैं तो मसीह हुण साडे विच जीवित आ, वो साडे विच हुण जींदा वा ते सानूं उहदे ते अखां रख के अपना जीवन बतीत करने की लोड़ है कि जिद्दां उहने इस धरती ते रहिंदे होए बाप के ताबेदार रह के बाप दी मर्जियां नूं फॉलो करते हुए इस जीवन नूं स्पेंड किया, उस ही ताबेदारी दे विच उस डर दे विच उस प्यार दे विच असीं बन के की करना वा अपनी इस जीवन काल नूं पूरा करना, परमेश्वर की मर्जी दे विच रहिंदे हुए उन्होंने प्रेजेंट करते हुए की करना असीं वाधते जाना। हालेलुया। अगर असीं एग्जाम्पल देखते हैं उत्पत्ति की किताब दे विच आदम ते हवा दी, हुण उस जगह दे विच असीं देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने की हुक्म दिता कि तुसीं इस फल नूं नहीं खाना, है ना। उस तो बाद की हुंदा कि दुष्ट आउंदा उन्हां कोल, शैतान उन्हां कोल भरमाउण वास्ते आउंदा, उन्हां नूं गल्लां दे विच पाउंदा, वो की करदा परमेश्वर के कलाम नूं चुक के की करदा वा दूसरे वे दे विच
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ। तो की करते हैं, वो पाप के डिग जाते हैं, तो उस तो बाद बाकी अदन के विचों कट्टे जाते हैं। हुण उस जगह पर भी असीं देखते हैं कि वो परमेश्वर की एक प्रोटैक्शन के सीगे, वो परमेश्वर की एक आत्मिक प्रोटैक्शन के सीगे। तो जदों शैतान उन्होंने भरमाउण आया, उन्हें हर एक चीज़ की की उन्होंने टैंप्ट करने की कोशिश की अलग अलग तरीक़े उस ही फल में की करके घुमा के, जिवें परमेश्वर ने कहा सीगा उस तरीके उन्होंने उन्हें अपने तरीके वचन को तोड़ मरोड़ के की किया, उन्होंने सामने प्रजेंट किया। तो उन्होंने भी उत्थे की किया, उन्होंने अपनी मर्जी करनी जरूरी समझी परमेश्वर की मर्जी नालों, तो उस पाकीज़गी दे विचों की वो निकल गए। जब तक शैतान उन्होंने हाथ नहीं सी ला सकिया, उन्ना चਿਰ पाप का मौत का उन्होंने दोनों के उत्ते कोई अधिकार नहीं सीगा, जब तक वो परमेश्वर की उस मर्जी के सीगे। सो वही चीज़ मैं इतने तुहानूं समझाउणा चाहना परमेश्वर के कलाम के विचों कि सानूं की लोड़ है, असीं परमेश्वर की मर्जी के विच बने रहिए, क्योंकि जदों हुण असीं मसीह दे नाल परमेश्वर के विच छिपे हुए हैं, ਉਹਦੀ पाकीज़गी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ छिपे ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ पाकीज़गी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ गौर करते हैं जे दो राजे ने, जो पहला राजा असीं देखते हैं जो इजराइल का होया साउल, तो दाऊद की असीं जिंदगी देखते हैं दोनों राजा की, पहले तो दूसरे की। तो सानूं बड़ा कुछ सिमिलर भी दिखता तो बड़ा कुछ इदां दा भी सीगा कि जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सीगा। हुण परमेश्वर ने साउल नूं भी चुनिया अपने दास के जरिए, नबी सैमुअल उहदे कोल आया, उस कोल ही अपना साउल दे कोल भी उही सैमुअल गया। तो उही परमेश्वर के दास ने दोनों की किया, अभिषेक किया, पर उन्होंने दोनों की जिंदगियां जिहड़ियां सी, उन्होंने दोनों के जीवन सीगे वो बिल्कुल की सीगे, अलग सीगे। हुण अगर असीं देखते हैं कि परमेश्वर ने इवन दाऊद वास्ते एडी वड्डी आपदी गवाही दी है कि मेरे दिल नूं भाउण वाला बंदा मैनूं मिल गया। सो की असीं देखते हैं कि जो साउल सीगा परमेश्वर उन्होंने काहदे वास्ते चुनिया सीगा, आपदी इजराइल के आपदे लोगों की खिदमत करने वास्ते, कि लोग की करन, वो बादशाह की करे परमेश्वर की मर्जी नूं की करे लैके चले, तो उन्होंने जो दे बच्चे ने जो जो दी कौम आ वो की करे देख रेख कर सके। लेकिन जो उस राजा साउल सीगा उन्हें की किया, उन्हें परमेश्वर की उस मर्जी नूं नकार के, परमेश्वर की उस इच्छा को, परमेश्वर की महिमा ना करते हुए, वो जो उन्होंने फेम मिलिया सी उहदे विच की हो गया, वो डुब गया, उहदे विच की हो, उस फेम उहदे दिमाग से सवार हो गया, उत्ते हावी हो गया। सो उन्हें की किया, वो पाप दे विच पै गया, परमेश्वर की मर्जी नूं नकारिया। और दूसरे पासे असीं दाऊद नूं भी देखते हैं कि दाऊद ने भी पाप किया, वो व्यभिचार दे विच पै गया। पहली चीज़ वो व्यभिचार च पिया, फिर उन्हें कतल करवाया, फिर उन्हें झूठ बोलिया, कितनी चीज़ां जिहड़ियां सीगियां एक लाइन दे विच सीगियां। लेकिन ऑन द सेम टाइम उस बंदे के असीं जीवन नूं देखते हैं तो की करदा पिया, वो बंदा जदों उहनूं आपदे पाप का पता लगदा, परमेश्वर के दास द्वारा एक नबी उहदे कोल आउंदा, उहदे नाल गल करदा, जदों उहनूं उस पाप बारे पता लगदा तो की करदा, वो माफ़ी मंगदा परमेश्वर को, परमेश्वर के हजूर जाके वो डिगदा गिड़गिड़ाउंदा ते रोंदा। जदों परमेश्वर का दास साउल ते आपदी मर्जी नूं रिवील करदा, उहनूं दसदा कि तू इत्थे गलत आ, वो की करदा आपदे आप नूं जस्टिफाई करदा। इदां ही तो साडे जीवन दे विच भी कई बार कि असीं किसी पाप दे विच हुंदे हां, जां असीं परमेश्वर की मर्जी तो हट के कुछ कर रहे हुंदे हां, उदों की हुंदा असीं आपदे आप नूं जस्टिफाई करते हैं, जो सानूं पता लगता कि नहीं भी आ चीज़ गलत आ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, असीं कहने नहीं जे मैं झूठ बोल रहा किसी की भलाई वास्ते तो कर रहा, जे मैं ये काम कर रहा तो मैं होर की करा, मैं फसिया इस तरीके नाल, असीं आपदे आप नूं जस्टिफाई करन लग जाते हैं, है ना। हुण अगर देखते हैं कि अगर उत्थे बादशाह जो बादशाह दाऊद सीगा, राजा दाऊद सीगा, वो भी अपने आप नूं की कर सकदा सी, जस्टिफाई कर सकदा सीगा कि मैं राजा, मेरी हुकूमत है, मैं चाहे जो मर्जी करा, चाहे वो गलत सीगा। लेकिन उस समय के जोड़े राजे सीगे उन्हों का की हुंदा सी, एक होल्ड हुंदा सीगा कि जो उन्होंने मर्जी हुंदी सी वो करते सीगे। लेकिन वो राजा परमेश्वर का डर रखण वाला राजा सीगा। सो उन्होंने जदों अपने पाप का पता लग गया, जदों उन्होंने पता लग गया कि मैं ये मर्जी करके परमेश्वर की उस पाकीज़गी चों बाहर निकल रहा, तो परमेश्वर को माफ़ी मंगी, तो परमेश्वर के हजूर दोबारा आया, तो परमेश्वर उन्होंने की असीं देखते हैं कि गवाही दी है कि मैनूं इहो जिहा बंदा मिल गया जो मेरे दिल के नज़दीक है, मेरे दिल के नेड़े है। सो जो असीं इन्हां दोनों की जिंदगी नूं देखते हैं, बहुत एक अच्छी एग्जाम्पल है साडे सामने जो सानूं सिखाउंदी है कि सानूं किवें दा एक जीवन बतीत करन दी लोड़ है, सानूं किवें दा एक जीवन स्पेंड करन दी लोड़ है। सानूं लोड़ है कि असीं उठ के बैठ के की करिए परमेश्वर के उस
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪढ़ांगे ਅੱਗੇ। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो इत्थे सिर्फ इस चीज़ बारे नहीं, असी सिर्फ इस चीज़ की वेट नहीं कर रहे कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला वा, है ना। उन्हें सानू इत्थे वादा किस चीज़ का किया कि जिस दिन वो महिमा दे विच आएगा असी भी की होवांगे? महिमामय होवांगे उहदे नाल, है ना। असी उहदे जे वो बाप दे सज्जे हत्थ बैठा ते असी की आ? असी उहदे सज्जे हत्थ बैठांगे। सज्जा पासा की हमेशा एक डोमीनेंसी नूं दर्शाउंदा वा, एक पावर नूं दर्शाउंदा कि जिवें प्रभु यीशु मसीह नूं पावर दित्ती गई है बाप द्वारा, उस तरह ही प्रभु यीशु मसीह ने गां सानू की दित्ती है? पावर दित्ती है। हुण असी जो हाँ असी स्वर्ग दे सिटीजन, असी स्वर्ग दे की हाँ? नागरिक। किवें? असी अर्न नहीं किया, असी आपदे आप उस चीज़ नूं कमाया नहीं है, असी खुदावंद द्वारा आपदे पुत्र दी कुर्बानी देने द्वारा की होए असी नागरिक बने हैं उस जगह के। सो सानू की लोड़ है? उस नागरिकता की की करिए? इंपॉर्टेंस नूं जाणीए। असी स्वर्ग के उस सिटीजनशिप की करिए? इंपॉर्टेंस जाणीए। हुण इत्थे असी देखते हैं कि जदों असी कैनेडा की धरती ते आउंदे आ जां किसी भी कंट्री दे विच जाने आ ते किन्ने पापड़ वेल के बंदा PR तक पहुँचदा, फिर किन्ने पापड़ वेलदा ते फिर जाके भी अस पेपर वर्क करदा ते उहनूं सिटीजनशिप मिलदी है किसी कंट्री की। सो इत्थे सानू कुछ नहीं करना पिया, इत्थे सानू की है? सब कुछ परमेश्वर ने आपके फजल के नाल सानू दिता, ਉਹਦਾ अनुग्रह, ਉਹਦਾ ग्रेस आ कि ਜਿਹਦੇ सदका उन्हें सानू बचाया, ਜਿਹਦੇ सदका उन्हें की किया सानू ਉਹ गंदियां थावां तो नरक के विचों कढ के स्वर्ग थावां 'ਚ बिठा दिता। सो सानू उस चीज़ की इंपॉर्टेंस जानने की लोड़ आ। मैं पिछले दिन घरे मीटिंग के विच शेयर कर रहा सीगा कि एक एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा खड़ा होया सड़क के उत्ते, होमलैस, उसका कोई घर बार नहीं, कुछ नहीं है, तो कोई बंदा वो को लंघदा होया जाता तो वो रोटी मंगता कि मैनू खाण नूं रोटी दे दे, मैनू जां मैनू $2 दे दे, जां मैनू $1 दे दे। तो गड्डी चों बंदा निकलता बुजुर्ग, तो उन्होंने कहना तू गड्डी च बैठ, घरे ले जांदा, उन्होंने नवाउंदा धवाउंदा तैयार करदा, उन्होंने कहना अज तो तू मेरा की है मुंडा, तो उन्होंने आपकी वसीयत विच लिख दिंदा। साडे नाल भी उही चीज़ हुई आ, असी भी परमेश्वर द्वारा की किते गए, बचाए गए हैं। असी परमेश्वर द्वारा साडे तो दा वड्डा फजल होया, तो सानू की लोड़ है कि असी उहदी इंपॉर्टेंस नूं जाणीए ते प्यार की इंपॉर्टेंस नूं जाणीए। सानू की लोड़ है कि असी की करिए? ਉਹਦੀ हुक्म की ताबेदारी ਦੇ ਵਿੱਚ रहीए। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ अमीर बंदा आपकी वसीयत में लिख लैंदा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ बेड़ा बना लेंदा। सो असी देखिए भी कुल कायनात का जो खालिक तो मालिक है उन्हें सानू अपने धीआं पुत्र बनाया। असी की करते हैं? असी हर एक चीज़ तो ज़्यादा परमेश्वर तो ज़्यादा हर एक चीज़ को की देने इंपॉर्टेंस देने, पर उन्होंने असी भलाई रखते हैं। सो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस समय यही चीज़ तो मोटिवेट करना चाहुंदा कि सानू की लोड़ है कि जदों ਉਹ सानू मुफ्त नजात मिली है, सानू की जो असी कुछ कमाया नहीं है, ये ਉਹਦੇ फजल के द्वारा सानू दिता गया, ਉਹਦੇ अनुग्रह के सदका सानू मिलिया। तो हुण जदों असी मसीह के नाल परमेश्वर के उस छत्र छाया के विच आ, परमेश्वर के उस खंभा के हेठ चो पाए गए हैं, ਉਹਦੀ उस प्रोटैक्शन के विच आ। सो सानू की लोड़ है कि असी हर वेले ਉਹਦੇ ताबेदार रहिए, वो प्रोटैक्शन नूं की करिए, वो खंभा नूं हमेशा बरकरार रखिए। बरकरार किवें रख सकते हैं? जदों असी ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡੋਰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ।